Good evening, everybody. We'll be starting the webinar in the next 2 minutes. Good evening, everybody. We'll be starting the webinar now. Okay, good evening, everyone, and welcome to the Gyan session number 25. I'm Anand from Clensav team, and I thank each one of you to join us today as we embark on yet another enlightening journey of wisdom and knowledge enhancement. So before we begin, I would like to share a brief overview of the amazing Clensav app that we have developed over the last 6+ years. The Clinsav name has been derived from two words, clinic and savvy, meaning knowledgeable. Clinsav is the only clinic management app in the world that allows you to keep your data with yourself. It can also be used 100% offline with your full clinic data. It is very simple to use. Clinsav helps doctors easily manage patients, appointments, case papers, full prescriptions, bills, fees, issue of pre-filled letters, manage finances, and doing follow-ups with patients for any outstanding dues. Clinsav sends two automated appointments reminders through SMS to your patients. Clinsav users can also send custom WhatsApp messages to their patients using their own WhatsApp accounts. Now we shall start with our today's webinar. Our today's webinar topic is ADHD in Ayurveda, Clinical Understanding and Ayurvedic Management. Our distinguished speaker today is Dr. Pallavi Bherud. Dr. Pallavi Bherud is an Ayurvedacharya with 18+ years of experience. She is an MD in Ayurveda and also a PhD. Dr. Pallavi has been an HOD and professor in the pediatrics department in the B.R. Harne Ayurvedic Medical College. She is the founder of Sayo Ayurvedic and Panchakarma Center in Kamothai, Panvel, Navi Mumbai, and she has been practicing pure Ayurveda at her clinic for the past 18+ years. Dr. Pallavi has expertise in Panchakarma therapies, women's health, gynecology and hormonal issues, skin disorders, and Garbha Sanskar or prenatal care. She has won many awards such as Maternal Strength or Matru Shakti Award, Navadurga Award, Leva Gaurav Award, and Manikarnika Award. She has published research papers in national and international journals and conducted numerous health camps and public lectures.
She has also been actively involved in many social and community health initiatives. Dr. Pallavi, we are honored to have you with us today to conduct this webinar. Let us all welcome Dr. Pallavi Virud for today's session. Dear ma'am, you can start with your session now. Yes, sir. Thank you so much, sir, for this introduction. And I am really grateful to you, CleanSav team, Gyanvardhini sessions, and giving me this platform to share my thoughts on this wonderful topic. It is ADSD in Ayurveda. So thank you so much. And once again, grateful to you. Thank you, ma'am. Uh, yes. So I will share my screen first and then we'll start the lecture. Sure, ma'am. My screen is visible? Yes, ma'am, I can see your screen. Yes, ma'am. Yes. Yes. So thank you so much. Today's topic is ADSD in Ayurveda, the clinical understanding and Ayurvedic management. Because if some years ago, if somebody asked me, कि, have you treated ADSD? I मुझे बहुत डर लगा होता था उस टाइम पे क्योंकि कभी ADHD के पेशेंट देखे ही नहीं थे. But yes, now I can confidently say कि yes, ADHD can be very powerfully and very easily treated with Ayurveda. So let's see today's topic will understand the concepts of ADSD and what ADSD can be correlated in Ayurvedic terminologies. So first of all, I will take the blessings of Lord Dhanvantari and Lord Swaminarayan to conduct this lecture, and I will try to express my views on this topic. I'm not expert in this, but yes, I will definitely try whatever experience I gain in this topic during last some years. So ADSD, it is attention deficit hyperactivity disorder. So can you tell me what is the difference between disease and disorder? Any one of you, you can type in the chat box or you can speak also. Because the name suggests itself, it is a disorder. We understand the concept of ADSD with the term disorder. Yes. So is it possible to type for the participants, sir, or we can continue? Yes, ma'am. Yes, ma'am, they can type. So I'm just waiting for anybody. We can just give a few seconds to the participants Yes. if anybody would want to contribute. So there are these two terminologies in modern science. One is disease and the second is disorder. So what is the difference between it? Okay, you can also raise your hand in case if you would If want to somebody want contribute. to answer, yes, you can raise your hand and talk to us. Okay, I will give you the answer. Okay, let's go ahead. Yes, Yes, ma'am. Yeah, because sure. sometimes it happens कि वो technically possible नहीं हो पाता है, so it's okay. So disease is there is the problems which present with the some structural disorders. When in physically we have some disease or some structural changes, some infection in our body, some swelling or some abnormal structures in our body that is called as disease. And when there is a Ma'am, disorder, it yeah, is I think we have got somebody putting something in the chat box. okay. I think it looks like Jagruti, Dr. Jagruti Mishra. Yes. What is the answer? Dr. Jagruti, I'm allowing you to use the mic. You can actually, unmute your mic and you can talk in case if you want to. Yeah, Dr. Jagruti is saying disorder is functional abnormality and Yes, disease is correct, due to Jagrut. some pathogen. Yes. When there is some pathological effect is there and then some structural disorders, structural changes happens in our body, we call it as a disease. And when there is a functional, sometimes my hand get fracture, so that is the disease fracture. But when there is a paralysis, that is a functional deformity of my hand. So that is the disorder. So ADHD is also the disorder. That means it is connected with body and mind, and this is due to some functional effect, and it is due to some sometimes it is unexplained reason. There is no reason as such, but yes, in
Ayurveda and modern science also, there are some causes, some idiopathology is explained, but it is unrevealed or it is not confirmed yet. So it is called as disorder. Disorder means there is a functional problem related with any body organ or body system. So we'll start with some case studies. Uh, Before 10 years, I had not gone through, or I had not come across any patient of ADHD. But thanks to my DY Patil Ayurvedic Medical College, where I worked as an assistant professor and associate professor for 8+ years, and there I got the opportunity to come across the such type of patients, ADHD patients. So because of that, I got the confidence to treat ADHD patients. So these are the two cases I will discuss with you. These are patients from my clinic. So this is the first patient, age 6 years, that is male patient. The socio-economical status is very low middle class. गांव वाले पेशेंट जैसे होते हैं ना, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं ज्यादा, उसकी फादर मदर दे आर नॉट लिटरेट. So the patient is like from that community. And the chief complaints are poor social interaction, रेस्टलेसनेस. वो बच्चा बात ही नहीं करता था, या बात भी करेगा तो जो हम लोग उसको बोलेंगे उतना ही, दैट द पेशेंट इज आंसरिंग द सेम थिंग्स व्हाट वी आर आस्किंग हिम. देन उसको अटेंशन स्पैन नहीं होता था, मतलब कोई भी चीज पे फोकस नहीं कर पाता था. जो भी वर्ड्स वो बोलता था दे आर मीनिंगलेस और हाफ द वे. मतलब पानी, तो आपको समझ लेना है कि उसको पानी चाहिए. जेवण, भात, मतलब जो उसको चाहिए वो सिर्फ एक ही वर्ड में बताता. बस एट द एज ऑफ 6 years एक्चुअली द चाइल्ड स्पीक्स होल सेंटेंस इन अ प्रॉपर वे कि मुझे पानी चाहिए, मुझे खाना दो. बट ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक लाइक दैट. He is only speaking one single words. Sometimes it is also irrelevant, but yes, the mother understands the concept and she gives whatever he wants. But yes, that is the problem. Then lack of meaningful speech, delayed language development. He was not able to speak in a proper way, and poor compliance with the instructions. He was not able to follow whatever parents or teachers or as a doctor I asked him, but he was not able to answer those questions. And because of that, they gone to the doctor, they confirmed the diagnosis of ADHD, and the doctor advised them to go for the speech therapy. They went to the speech therapist, but the speech therapist asked them कि ये बच्चा बैठता ही नहीं है एक जगह पे, so how can I conduct the speech therapy for that child. So वो पेशेंट बहुत डिस्टर्ब हो गए कि अभी स्पीच थेरेपी करने के लिए बोला है लेकिन मेरा बेटा बैठता ही नहीं है एक जगह पे, so what should I do. Then she came to me because she is my old patient, so she knows कि we do some Ayurvedic treatment, so she just come to consult कि भाई ऐसे इसके ये पेशेंट के लिए आप कुछ कर सकते हो क्या. So I tried to find out the hetus first, है ना, because आयुर्वेद में तो the main चिकित्सा is हेतु, निदान परिवर्जन चिकित्सा. So हेतु उसका जो ये सब बिहेवियर था लास्ट 2 या 3 years में, जब से कोविड आया था. वो मेरे पास आई थी हार्डली, आज अभी 25 है, 23 में. और कोविड के दरमियान मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा एक्सेसिव ओवर यूज ऑफ मोबाइल फोन्स एंड टेलीविजन, बिकॉज द मदर हैज 4 kids, 2 लड़कियां, एक थर्ड बेटा और ये फोर्थ उसका बेटा है. एंड शी वॉज बिजी विथ सम हाउस होल्ड वर्क एंड उसको टाइम नहीं होता था. एंड वो बच्चे को मोबाइल थमा के उसके काम करना शुरू करती थी. एक्सेसिव नॉनवेज फूड दे आर टेकिंग, जंक फूड बहुत ज्यादा. छोटा बच्चा था, सबसे इसके लिए लाडला था घर पे, तो जो कुछ भी मांगेगा, चॉकलेट मांगेगा, स्वीट मांगेगा, उसको दिया जाता था. बहुत बहुत ज्यादा प्यार और लाड उसके होते थे. एंड नो फिजिकल एक्टिविटी. कोविड था, उसकी वजह से वो घर पे बैठने की उसको आदत हो गई. एंड आफ्टर दैट ऑल्सो ही वॉज नॉट go for the playing or some extra play games. So he was sitting at the home only. And because of that, there was this problem has developed. The dosh, we can understand kapha and tamoguna. Tamoguna has increased because of this what we can say विरुद्ध आहार, जो भी अपथ्य आहार उसने सेवन किया था उसकी वजह से. सो आई एडवाइस हिम डाइट रिस्ट्रिक्शन, जैसे आयुर्वेद में हम लोग बोलते हैं सभी डाइट जो नॉर्मल सात्विक फूड है, अच्छा घर का खाना है, जंक फूड को अवॉइड करना है. आस्क हिम. मैंने उसको बोला कि डेली सोसाइटी में उसकी मदर को बोला बाकी के का सब काम आप छोड़ दो, लेकिन उसके लिए आपको डेली 1 घंटा नीचे लेके जाना है, उसको बच्चों के साथ मिला के खेलना है. बट मोबाइल और इसके साथ पूरा उसको अवॉइड कर दिया, नो स्क्रीन. उसने मोबाइल छुपा के ही रख दिया उस मदर ने, उसको दिखाया ही नहीं कि मोबाइल सामने आएगा तो वो डेफिनेटली रोता था और मांगता था इसके लिए. सो ऐसे कुछ चेंजेस हमने उसमें उसके डाइट में और उसके लाइफस्टाइल में किए. देन
उसको जो चिकित्सा किया, बिकॉज शमन चिकित्सा में वी गेव हिम द वचा एंड यष्टि मधु चूर्ण फॉर द जिह्वा प्रतिसारण, बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक continuous sentences. So that jivha pratisaran is helpful to remove the kapha or accumulation of doshas into the jivha, and that kapha dosha is removed, so he was able, then afterwards he can speak in a proper way. Then jivhadi kara, this is also the one drug we use maximum time, we use at DY Patil. I learned and come across this drug at DY Patil. Then Plumikuta drugs, because as I said, they were from low socio-economical condition, so no hygiene was maintained. So I thought of some Krumi, उसका कृमि का भी कुछ वहां पे इफेक्ट होगा. सो बिकॉज विद दिस थिंकिंग आई गेव हिम कृमि कुठारस, and the costa was not clear. Costa and abdomen was little bit tenderness I found. So I gave some Gandharvaritaki, and the mala was not properly formed. So I gave some Anulomak Chikitsa. For that I gave Gandharvaritaki Churna. And afterwards, this is the treatment given for the long time, at least 6 months to 1 year. So in between, I did some changes in the medicine also. Kalyana Gruta is the main treatment given after 15 days or 1 month of Koshta Shuddhi. Kalyana Gruta on empty stomach early morning with warm water. Syrup Pachanam for digestion issues, and syrup Memurin. Then Panchakarma, yes, after 1 month of medicine, we started some Panchakarma also. Immediately after Shodhan Chikitsa, Koshta Shodhan Chikitsa, we started the Nasya with Brahmi Gruta Nasya. Then Yoga Basti Krama was advised, Anuvasan Basti with Sahachar Tel, Niruha Basti with Dashmur and Triphala Kashaya. Then Abhyanga with Narayan Tel daily. I asked her mother, his mother, to do Abhyanga with Narayan Tel. Daily नहाने से पहले उसको तेल लगाने के लिए बोला, and then wait for 10 to 15 minutes and then take the bath. So that is important to वात का जो शमन है उसको करने के लिए अभ्यंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट. अभ्यंगम आचरित नित्यम, आयुर्वेद में भी बोला है. एंड मुद्रा थेरेपी. In between, I come across the Gyanvardhini session of mudra therapy. So again, immediately I started that mudra therapy to that patient. जो हमको 6 मुद्रा वो मैडम ने सिखाए थे, the same मुद्रा उसको भी मैंने सिखाया. एंड स्पीच थेरेपी आफ्टर 2 months, जब वो थोड़ा सा स्टेबल होने लगा, थोड़ा सा एक जगह पे बैठने लगा, then the mother went to the speech therapist also, and they started the speech therapy. So what was the outcome? उसकी जो एबिलिटी है एक जगह पे बैठने की, वो थोड़ी सी इंप्रूव हो गई. अटेंशन देने लगा, उसको समझने लगा कि हम लोग क्या उसको पूछ रहे हैं. उसका जो रेस्टलेसनेस था, जो एक सेंटेंस सही तरीके से नहीं बोल पाता था, वो उसने बोलना शुरू किया. आई कांटेक्ट उसके नहीं होते थे, हमारी तरफ देखता ही नहीं था, वो नीचे देख के कुछ करता था या बोलता था, बट वो इम्प्रूव हो गया. मीनिंगफुल स्पीच उसके हो गए. एकेडमिक रिस्पॉन्स उसका अच्छा हो गया. जब वो 2 साल पहले आया था, तब उसको स्पेशल स्कूल का एडवाइस दिया गया था कि डॉक्टर ने और सभी लोगों ने उसको बोला था कि इसको आपको स्पेशल स्कूल में ही एडमिशन लेना पड़ेगा बिकॉज ऑफ हिज कंडीशन. बट यस, आफ्टर दैट ही वाज गॉट एडमिशन इन द नॉर्मल स्कूल, रेगुलर स्कूल जो आजू बाजू में हमारे कामोठा में है, वहां पे उसने एडमिशन ले लिया. उसका एक वीडियो हम लोग देखते हैं अभी. मैंने उसको बुलाया था क्योंकि मुझे प्रेजेंट करना था, तो आई आस्क्ड हिम टू से सम पोयम. अभी उसका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, बट यू कैन अंडरस्टैंड. सो ही कैन स्पीक द पोयम. हम लोग उसको जो बोल रहे हैं, वो कमांड, वो इंस्ट्रक्शंस वो फॉलो कर पाता है. सो दैट इज द इम्प्रूवमेंट, दैट इज द बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट विथ आयुर्वेदा. ये उसके कुछ रिपोर्ट कार्ड है जो लास्ट ईयर के है, सीनियर जूनियर केजी का उसका रिपोर्ट कार्ड है. उसमें सब जगह पे उसको A+ मिला है. तो पढ़ाई में वो अच्छा है. नाउ ही इज इम्प्रूविंग हिज एकेडमिक जो ग्रोथ है. एंड यू कैन सी दिस सर्टिफिकेट, जिसमें रनिंग एंड जिगजैग रेस में भी उसने पार्टिसिपेट किया था, और उसने उसमें अच्छा मतलब परफॉर्मेंस दिया है. बिकॉज द ADHD किड्स, दे आर नॉट एबल टू, जो ऐसे जो डिफिकल्ट टास्क होते हैं ना, जिगजैग में रन करना, या ऐसे जो डिफिकल्ट वाली जो मोमेंट्स होती है, वो कर नहीं पाते. बट यस, दिस चाइल्ड कैन, आफ्टर 1 year of treatment, he can achieve this. He can participate in this race also and win also. And this is the teacher's response, the teacher's remark: excellent,
on both the terms. Then this is the case of basically inattention. ADHD has two types we will see in the later part, but yes, this is the case of inattention and some combined symptoms of hyperactivity and inattention. This is the second case. The second case is 3.5 years boy. He is also male. Socio-economical condition is higher middle class. उसकी जो फैमिली है बहुत अच्छी थी, बहुत बोलते ना अच्छे क्लास का वो था. उसके जो पापा थे वो शिप पे होते. 6 months he was not with the family, और that is the main reason of पेशेंट जो एडीएचडी उसको डेवलप हुआ है उसका रीजन है, मैं बताऊंगी आगे. उसके कंप्लेंट्स क्या थे? सबसे पहले तो हाइपर एक्टिविटी, रेस्टलेसनेस, वीक स्पीच. वो रिपीटिंग वर्ड्स जो हम लोग पूछेंगे, उसको पूछा ना खाना क्या खाया, खाना क्या खाया, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, द सेम वर्ड्स व्हाट वी आर स्पीकिंग ही स्पीक्स और रिपीट्स द सेम वर्ड्स. तो हमारे क्वेश्चन को वो आंसर नहीं दे पाता था, फॉलो इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर पाता था, और एक जगह पे बैठता ही नहीं था. जब वो मेरे क्लिनिक में आता था, हम लोग सब चीजों को छुपा के रखते थे. टेबल शुड बी टोटली क्लीन, नहीं तो टेबल पे जो भी चीजें ना वो खींच खींच के सब उठा के लेके जाता था, या फोड़ता था या गिराता था. सो दैट इज द केस, दैट इज द पेशेंट. कि इतना डिफिकल्ट उसको हैंडल करना था. उसकी जो मदर है, शी अंडरस्टूड, शी फाइंड आउट कि 3 years के एज में जब वो अच्छी तरीके से बोल नहीं पाता है, उसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं है, तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया. दे वेंट टू द डॉक्टर पेडियाट्रिशियन एंड ही डायग्नोज हिम एज अ हाइपर एक्टिव ADHD पेशेंट. एंड बिकॉज ऑफ दैट द मदर इज सो मच ऑफ वरीड कि अभी मैं कैसे इसको मैनेज करूं, क्योंकि वो एक जगह पे बैठता ही नहीं था, ना खाने के लिए ना कोई भी चीज के लिए. एंड सो मच ऑफ, इतना उसकी रेस्टलेसनेस होती थी कि कोई चीज में वो कोई इंस्ट्रक्शन मदर की फॉलो नहीं करता था. मदर फेडअप हो गई थी कैसे मैनेज करूँ, बिकॉज शी वॉज अलोन एट होम. उसके फादर जो है आउट ऑफ शिप पे रहते थे 6 month के लिए, तो उसकी मदर को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती थी उसको हैंडल करने के लिए. उसका भी वीडियो मैंने आगे लिया है. उसको हमने चिकित्सा जो दिया उसमें सूट शेखर रस, देन हिंगवाष्टक चूर्ण प्लस शुंठी विथ वार्म वाटर. इसका जो रेफरेंस है आगे हम आयुर्वेदिक पार्ट ऑफ एडीएचडी जब कवर करेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाई दिस मेडिसिन. देन कल्याणक घृत, ओरली एम्प्टी स्टमक, ब्राह्मी, जटामांसी, शुंठी, अश्वगंधा, गुडूची, वचा चूर्ण, each 10 grams with Suvarna Malini Vasantake 10 tablet. I made a 60 puri and gave it to him with honey, and Saraswata Dishta with Suvarna Yukta. These are the flow of treatment. Then Panchakarma again, Brahmi Ghrutnasya Yoga Basti Kram. And after 8 days of Yoga Basti Kram, we started the 21 days Basti of Brahmi Ghrut, Brahmi oil. At home, I teach the mother how to do the basti. I gave the syringe and catheter, and I asked her to give the basti at home. Abhyangavi Shirabala oil and Mudra therapy also. I explained this to this patient also. So this is the patient before treatment. See, before मतलब now he is in 5 years. ये आपका ये आज का कल का उसका वीडियो है, और ये उसका 1.5 साल पहले का वीडियो है. ये भी जबरदस्ती से उसकी मम्मी ने उसको खड़ा किया था. विथ सम बोलते ना, डरा 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 के उसको बोला था. तभी उसने कुछ कुछ एक्टिविटीज के लिए स्कूल में ये पोयम या कुछ बोलना था उसको, तो बोला था. बट ही वॉज नॉट एबल टू फोकस, ही वॉज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट. और वो जो भी बोल रहा था वो वियर्ड वर्ड थे, अच्छी तरीके से नहीं बोल पाता, इररिलेवेंट कोई भी. और इसका अगर आप हेतु देखोगे तो उसकी मदर जब प्रेग्नेंट थी, फादर वॉज नॉट देयर, अकेली घर पे थी, और जो फैमिली था कोई सपोर्टिव नहीं था. एंड अगेन शी वॉज सो डिप्रेस्ड. एंड बोलते ना, एक प्रेगनेंसी के दरम्यान गर्भ संस्कार का यही तो इम्पोर्टेंस है. बिकॉज गर्भ संस्कार में जब प्रेगनेंसी हमारी होती है, तब हम किस तरीके से सोचते हैं, क्या हमारा इन्वायरमेंट होता है, हमारी फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल सभी जो इम्पैक्ट होता है, उसका हमारे बॉडी पे और हमारे बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट होता है. एंड दैट इज द रीजन वो हमेशा स्ट्रेस में रहती थी, टेंशन में रहती थी. उसको डर लगा हुआ रहता था, अगर मुझे कुछ हो गया तो कौन मुझे देखेगा, देयर इज नोबडी एट होम.
कोई भी चीज के लिए हमेशा उसको बोलते हैं ना, खुद को ही भागना पड़ता था कहीं पे भी। और एक इमोशनल सपोर्ट जो हस्बैंड का, फैमिली का मिलना चाहिए, वो उसको नहीं मिला। एंड हमेशा उसको लगता था कि मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ, जब वो आते भी थे शिप पर से, कभी एक आध बार आए थे, बट वो उनके ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसका, उनका जो पर्सनल फ्रेंड के साथ जाना या कुछ उनके फैमिली में गेट टुगेदर है वो करना, उसमें ही लगे हुए रहते थे। बट ही वॉज नॉट एबल टू गिव टाइम टू द मदर। उसकी वजह से शी वॉज अंडर स्ट्रेस कि भाई मैं इतना एक 6 महीने से अकेली हो, अभी आप आए हो तो भी यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ मी। एंड दैट स्ट्रेस जो प्रेगनेंसी के टाइम पे उसको आया, एंड उसका एक बोलते हैं आउटपुट ऐसे बच्चे में डेवलप होता है। बिकॉज 5वें 6वें महीने में जो बुद्धि का, जो मन का डेवलपमेंट होता है, प्रेगनेंसी की ऑल द 9 मंथ्स आर सो मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर एक मंथ में अलग अलग ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होती है। और उस वक्त अगर मदर के बॉडी, माइंड और मेंटल लेवल पे कुछ भी चेंजेस होते हैं, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर होता है। सो दैट इज द केस। एंड ये अभी उसको आफ्टर ट्रीटमेंट यू कैन सी, दिस इज द वीडियो ऑफ यस्टरडे। Ma'am, I'm sorry, we may not be able to hear the sound, but ओके, आपको video साउंड तो नहीं आया we can दोनों? see, we are, able to see. ओके Just ओके। for your information. I think while sharing, I should share the sound also, but Yeah. I'm not able to see it. No, ma'am. It's okay. We'll go for again. It's okay, ma'am. I think. Yes, yes, no problem. We'll Okay, continue. okay. Yeah, So sure, ma'am. so let's see the definition of ADHD. ADHD is attention deficit hyperactivity disorder. It is the neurodevelopmental disorder. जब न्यूरॉन्स का डेवलपमेंट होता है ब्रेन में, उसी वक्त ये प्रॉब्लम डेवलप होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट इट persistence with the patterns of inattention, हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी। और नॉट कि भाई सिर्फ बच्चों में होता है, ये आगे जाकर बड़ों में भी आगे जाकर ये कंटिन्यू होता है। और जो इम्पैक्ट करता है उनके लाइफ के ऊपर, स्कूल, वर्क एंड रिलेशनशिप, अगर वो काम करते हैं ऑफिस में, वहां पे भी वो इम्पैक्ट आगे जाके कंटिन्यू होता है। सो एपिडेमियोलॉजी में अगर देखेंगे तो ज्यादातर 5% ऑफ द चिल्ड्रन एंड 2.5% ऑफ अडल्ट्स हैव एडीएचडी। प्राइमरी स्कूल में अगर देखा जाए तो 11.32% रेशो है अभी इंडिया में। एंड इट इज मोर प्रिवेलेंट इन बॉयज, ज्यादातर बॉयज में ये देखा जाता है। अगर उसका हम लोग पैथोफिजियोलॉजी या क्यों होता है, इटियोलॉजी देखेंगे तो द मेन ओरिजिन इज जेनेटिक डिसऑर्डर। ये जेनेटिक जिन से आता है, फैमिली बैकग्राउंड से आता है। अगर जैसे हमने बोला कि मदर के गर्भावस्था में अगर उसके साथ कुछ फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे उसको अगर कुछ स्ट्रेस है, इमोशनली वो डिस्टर्ब है, बहुत ज्यादा निगेटिव थॉट्स उसके अंदर है, तो उसका भी इम्पैक्ट एडीएचडी के ऊपर, एडीएचडी या ऐसे जो मानस विकार है वो डेवलप होने के लिए हो सकता है। एंड द सेकेंड रीजन इज प्रेगनेंसी में अगर अल्कोहल या स्मोकिंग मदर करती है तो उसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर हो सकता है। तो दीज आर सम कॉजेस। देन सीएनएस इंसर्ट, सीएनएस का जो होता है ना, न्यूरो एनाटॉमिक एंड न्यूरो केमिकल, केमिकल लोचा, आप नॉर्मली हम लोग जैसे बोलते हैं ना मुन्ना भाई एमबीबीएस में, इस केमिकल लोचा अंदर जो भी स्ट्रक्चर, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज फाइन, बट केमिकली जो फंक्शनल है, जो फंक्शनैलिटी ऑफ ब्रेन है, जिस तरीके से फंक्शन करना चाहिए, जिस तरीके से कोई भी सिग्नल को एक्सेप्ट करके उसको रिस्पॉन्स देने का जो सिस्टम है हमारे ब्रेन की, वो सही तरीके से नहीं हो पाती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट सच टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स आर डेवलप। सो दिस इज ड्यू टू सीएनएस इंसर्ट। एक्चुअली क्या होता है, वी विल अंडरस्टैंड। जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारा होता है ना, वो हमारी, अगर आपको एक एग्जांपल के तरीके से समझाती हूँ सभी को, वी विल अंडरस्टैंड। बिकॉज दिस इज द हमारा व्हाट वी कैन से प्रिंसिपल। इमेजिन वन स्कूल जहाँ पे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इज द प्रिंसिपल, एमिगडाला जो जिसके ऊपर हमारी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का कंट्रोल होता है, और एमिगडाला इज द सेंटर जहाँ पे हमारी इमोशंस, फीलिंग्स, एंगर, हमारा जो बिहेवियर है उसका पूरा कंट्रोल एमिगडाला के ऊपर होता है। तो एमिगडाला करवाता है मतलब, लेकिन ये जो है, और एमिगडाला जैसे कंट्रोल करेगा वैसे हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी। करेक्ट। सो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में ही अगर प्रॉब्लम है, केमिकल लोचा है, वहां से ही सिग्नल सही तरीके से नहीं दिया जा रहा है, या ज्यादा सिग्नल दिया जा रहा है, दोनों तरीके से, या तो कम सिग्नल दिया जा रहा है या तो ज्यादा सिग्नल दिया जाता है, जिसकी वजह से हाइपर एक्टिविटी या इन अटेंशन ऐसे जो प्रॉब्लम डेवलप होते हैं। एंड दैट इज ड्यू टू दिस प्रॉब्लम ऑफ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स।
उसका फंक्शनिंग सही तरीके से नहीं हो रहा है। इमेजिन अगर स्कूल की प्रिंसिपल छुट्टी पे चले जाते हैं और स्कूल के जो टीचर है, दैट मींस एमिक डाला है, वो भी फिर बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे या बच्चों के साथ मस्ती करना शुरू करेंगे, या जो स्कूल का जो एक डिसिप्लिन होता है वो बिगड़ जाता है। बिकॉज अगर मेन कंट्रोलिंग पावर है वो ही नहीं है, तो आगे की जो सब सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो सही तरीके से फंक्शनिंग नहीं कर पाती है। स्ट्रक्चरली एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज फाइन, बट यस फंक्शनली देयर इज अ प्रॉब्लम. So that is the main etiology of ADHD. So what are the types of ADHD? There is hyperactive or impulsive type of ADHD. Sometimes there is inattentive ADHD, and sometimes the patients, maximum patient we find out as a combined type. थोड़ा सा hyperactive भी होते हैं, थोड़े से inattentive भी होते हैं, और some are specifically hyperactive or specifically inattentive. सो व्हाट इज इनअटेंटिव टाइप ऑफ एडीएचडी? जो उसके जो 9 सिम्टम्स बुक्स में दिए गए हैं, नॉर्मली केयरलेस होते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं, 2+2 4 होना चाहिए, कॉमन सेंस कोई भी छठवीं फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को आता है, बट द बेबी दो चिल्ड्रन जो होते हैं वो 2+2 को 5 लिख देंगे। सिंपल सिंपल एकदम सिली मिस्टेक्स वो करते हैं, हमको समझ में नहीं आता है कि इतना क्या है, बट द बेबी दैट चाइल्ड हैज द प्रॉब्लम विद देयर mental issues or with their central CNS problem. फेल्स टू कीप अटेंशन इन टास्क, जो भी उसको काम दिया जाता है वो पूरा नहीं कर पाते, उसको अटेंशन फोकस ही नहीं कर पाता है। हमको लगता है स्कूल में टीचर को लगता है कि ये कुछ सुनता ही नहीं है। आपने भी आजू बाजू में ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे होंगे, या एज अ टीचर अगर कोई होता है तो हम लोग देखते हैं तो वो बच्चा सुनता ही नहीं है। हमको लगता है कि हमको पता चलता है, टीचर को पता चलता है कि इसका ध्यान नहीं है क्लास में। दे डज नॉट फिनिश द इंस्ट्रक्टेड टास्क, अगर उसको छोटा सा कुछ काम दिया है, ही वाज नॉट एबल टू फिनिश इट इन अ प्रॉपर वे। ऑर्गेनाइजिंग टास्क में बहुत पुअर, कोई भी अगर उसको 10 चीजें एक जगह पे रखने के लिए बोला तो वो सही तरीके से नहीं रख पाएगा। अवॉइड टास्क दैट रिक्वायर सस्टेन मेंटल एफर्ट, जहाँ पे बहुत ज्यादा थोड़ा सा भी दिमाग लगाना पड़ता हो ना, ऐसे टास्क वो करेगा ही नहीं, उसके पीछे भागेगा मैं, तो वो बोलेगा मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं आता है, मैं नहीं करूंगा, मतलब बिकॉज ही नो कि ही वॉज नॉट एबल टू डू इट। तो इसकी वजह से वो ऐसे टास्क, ये स्कूल में हमको पता चलता है, या नर्सरी या ऐसे लेवल पे जब टीचर्स पेरेंट्स को बताते हैं तब हमको ये सब चीजें पता चलती है। लूजेस्ट थिंग, बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा मेरा मैडम मुझे हमेशा एवरी डे नया पेंसिल और नया रबर देना पड़ता है। दैट मीन्स ही वाज नॉट एबल टू, उसकी जो जरूरत की चीज है उसको संभाल नहीं पाता है, उसको गुम कर देता है, कहीं पे भी वो लॉस हो जाता है उसका। इजिली डिस्ट्रैक्टेड विथ एक्सटर्नल स्टिमुला, अगर क्लास में कुछ चल रहा है और बाहर अचानक से कोई बर्ड आया या ऐसे कुछ खिड़की में विंडो में कुछ हो जाता है तो उसका ध्यान भटक जाता है, मतलब उसका जो अटेंशन है, उसका जो माइंड है एक जगह पे फोकस नहीं होता, इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, इजीली वो इधर उधर उसका जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। एंड फॉरगेटफुल इन डेली एक्टिविटीज, जो रेगुलर सिंपल एक्टिविटीज है डेली की वो भी वो नहीं कर पाता है। डेली हमको ब्रश करना है, डेली हमको ये चीजें करनी है, ये छोटी छोटी चीजें भी उसको याद नहीं रहती है। दिस इज द एडीएचडी ऑफ टाइप ऑफ इनअटेंटिव टाइप। देन हाइपर एक्टिव टाइप में क्या होता है, बहुत ज्यादा हाथ और पैरों को हिलाते रहते हैं वो लोग, जब अभी बैठेंगे ना तो ऐसे तब करेंगे या पैरों को हिलाते रहेंगे, एक जगह पे बैठ ही नहीं पाते हैं, थोड़ा सा इधर बैठेंगे थोड़ा सा उधर बैठेंगे। क्लास में भी आपने देखा होगा कि कहीं पे भी रन्स अराउंड एंड क्लाइम्स एक्सेसिवली, मतलब कहीं पे भी छोटे बच्चे, अगर आप क्लास में कोई जूनियर सीनियर केजी के या नर्सरी के क्लास में जाओ तो यू विल अंडरस्टैंड कि बच्चे नॉर्मली कोई बेंच पे खड़ा हो जाता है, कुछ अलग ही चीजें करता है। तो ये टीचर नोटिस करती है या मदर भी नोटिस करती है उसके घर पे अगर बच्चा ऐसा है तो। कैनॉट प्ले और एंगेज इन द लेजर एक्टिविटीज, उसकी जो पसंद की चीज है, कोई खेलने के लिए कोई खिलौना भी उसको दो तो भी वो खिलौने के साथ ज्यादा टाइम तक नहीं खेल पाता है। उसको खिलौना दिया, थोड़ा भी फेंक के तोड़ के वो फेंक देगा, लेकिन उसके साथ वो खेल नहीं पाता है। ऑलवेज ऑन द गो, एक्ट एज द, मतलब ऐसा लगता है उसके पीछे पैर कोई भिंगरी लगाई है ना, पैर पे कभी कभी मतलब गाड़ी पे कैसे चाबी भरते हैं तो गाड़ी घूमती रहती है। द सेम वे दैट किड्स, द एडीएचडी हाइपर एक्टिव किड्स जो है हमेशा घूमते रहते हैं, एक जगह पे ठहर ही नहीं पाते, बैठ ही नहीं पाते हैं। बहुत ज्यादा एक्सेसिव टॉकिंग उनका होता है, बहुत ज्यादा बड़बड़ करते हैं, और वो बड़बड़ कोई काम की नहीं होती है, इररिलेवेंट होती है। जो आंसर उनको देने हैं, अगर उनको कोई क्वेश्चन पूछा तो पूछने से पहले ही आंसर देंगे, पूरा सुनेंगे ही नहीं, उनमें वो कैपेसिटी नहीं है होल्ड ऑन करने की। इसकी वजह से वो उनकी जो बोलते हैं ना, कभी कभी क्यू में खड़ा करना है उनको, या अपना टर्न आने के बाद अगर आप किसी को कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, अगर हम लोग मेडिकल कैंप लेते हैं ना तो पता चलता है कि अगर कोई चीज हम लोग बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो कोई बच्चा बीच में ही आके ले लेता है, मतलब ही वॉज नॉट एबल टू होल्ड ऑन, अपना टर्न आने के लिए वो वेट तक नहीं कर पाता है।
एंड इंटरप्ट अदर्स कन्वर्सेशन। अगर उसकी माता मम्मी और टीचर कुछ बात कर रही है तो बीच बीच में जाके मम्मी का पल्लू खींचेगा या टीचर को कुछ पूछेगा। मतलब कोई भी दो लोग अगर बात करे उसमें जाके वो बीच बीच में क्या करेगा, इंटरप्ट करेगा कन्वर्जन को। उसको वो अच्छा नहीं लगता है, उसको बीच बीच में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना मजा आता है, किसी चीज को पोक करना मजा आता है। तो दिस इज द सिम्टम्स और दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपर एक्टिव टाइप ऑफ किड्स। लेकिन एडीएसडी को डायग्नोस करना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा नहीं होता है बिकॉज ये जो हमने सिम्टम देखे ना, इसमें से बहुत सारे सिम्टम्स हमारे अंदर भी है। मैं भी बहुत बड़बड़ करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे एडीएसडी है। बहुत सारे लोगों का कभी कभी अटेंशन फोकस कम होता है, पढ़ाई में लो होते हैं, वीक होते हैं, लेकिन उनको एडीएसडी नहीं होता है। सो दीज आर द सिम्टम्स। बट कभी हमको उसको एडीएसडी को स्टैंपिंग करना है, तभी हम उसको लेबल कर सकते हैं कि भाई यस दिस बच्चा, दिस चाइल्ड इज हैविंग एडीएचडी प्रॉब्लम। सो उसको डिसाइड करना, डायग्नोस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके लिए आपको सही तरीके से उसको एग्जामिन करना हर एक लेवल पे, उसको घर में, उसके स्कूल में, उसका वर्तन, उसकी जो सब एनवायरमेंट जहां जहां पे वो जाता है, उसका वर्तन, उसका जो नेचर है वो सभी जगह पे सेम होता है, इक्वालिटी दिखाई देती है। और वो हमको उसके फैमिली फिजिशियन, उसके जो टीचर्स है, उनकी फैमिली है, सबके साथ मिलके आपको उसको एनालिसिस करना है, देन ओनली यू कैन पुट द स्टैम्प एज अ एडीएचडी चाइल्ड। So there is a diagnostic criteria DSM. It is the Diagnostic Statistical Manual of for Mental Disorders, जिसको हम एनालिसिस एडीएचडी का करने के लिए यूज करते हैं। अगर 7 साल के अंदर का बच्चा है तो ये जो हमने 9 क्राइटेरिया या 9 सिम्टम्स देखे, आउट ऑफ दैट इफ 6 आउट ऑफ 9 आर प्रेजेंट, वी कैन से दिस इज द एडीएचडी। And if the child is above 12 years or above 7 to 12 years, then we can also say DSM-5 का क्राइटेरिया है, थोड़े से चेंजेस है उसमें, बट यस 6 आउट ऑफ 9। एंड एडोलेसेंट है, अगर बड़ा बच्चा है तो 5 आउट ऑफ 9, क्योंकि बड़े बच्चे में उसका एज ग्रो होने के बाद, कि बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि मेरे बच्चे को एडीएचडी है। क्योंकि एडीएचडी एंड अ नॉर्मल मस्तीखोर बच्चा या बोलते हैं ना थोड़ा सा क्रैंकी बच्चा, थोड़ा नॉटी बच्चा, लोगों को लगता है, पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा थोड़ा नॉटी है, बट ही इज नॉट हैविंग सम प्रॉब्लम। अभी मेरे पास एक पेशेंट है, उसको उसके बच्चे को एडीएचडी आई कैन फाइंड आउट, बट वो एक्सेप्ट करने को ही रेडी नहीं है। और जैसे जैसे जब छोटे होते हैं बच्चे तो उनको लगता है कि ये तो मस्ती करता है, सिर्फ डरता नहीं है या उधर फुथल करता है। बट आई कैन अंडरस्टैंड कि उसको एडीएचडी है, बट उसकी मम्मी और उसके पापा दे आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट। मैंने उसको कितनी बार बोला कि आप जाके किसी डॉक्टर को दिखाओ ताकि वो कंफर्म हो जाए उसका डायग्नोसिस, बट शी इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। एंड जैसे जैसे वो बच्चा अभी 4 साल का है, 5 साल का है, तब तक ओके, लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा, 8 या 9 साल का हो जाएगा, फिर भी ये बिहेवियर उसका जब वैसा ही रहता है, देन इट इज डिफिकल्ट टू डायग्नोस एंड डिफिकल्ट टू ट्रीट ऑल्सो। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हम लोग उसको जल्दी से जल्दी डायग्नोस करें ये डीएसएम क्राइटेरिया से। और किस तरीके से हम लोग उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं, दैट इज द स्टूप इफेक्ट। छोटी छोटी एक ऐसे बहुत सारे हैं, एक सिंपल एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। उसको डायग्नोस करने के लिए हम उनको ऐसे कुछ वर्ड्स देते हैं कि जहाँ पे वर्ड का मीनिंग और उसका कलर सेम हो। अगर ये लेफ्ट साइड का अगर आपने देखा तो ग्रीन कलर ग्रीन में लिखा है, येलो कलर येलो, जो वर्ड है वो येलो कलर में लिखा है, तो दैट इज इजीली रीडेबल, आई कैन इजीली रीड। एंड जो दूसरे साइड का है वो भी मैं रीड कर सकती हूँ, या कोई भी छोटा बच्चा उसको इजीली रीड करता है। बट जो नॉर्मली 3 या 5 साल का बच्चा है वो उसको इतना इजीली रीड नहीं कर पाता है अगर उसको एडीएचडी है तो। सो दैट वी विल अंडरस्टैंड कि उसका जो रिस्पॉन्स का टाइम है, उसका जो अंडरस्टैंडिंग है, उसका जो केमिकल लोचा है, उसमें कितना प्रॉब्लम डेवलप हुआ है या हो सकता है। अकॉर्डिंगली वी कैन डू ऑल द अदर टेस्ट आल्सो टू कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ एडीएचडी। सो व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ एडीएचडी? अगर एडीएचडी किसी भी बच्चे को होता है तो कोई ये लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर तो है नहीं, तो डेफिनेटली वो अडल्ट बच्चा अडोलेसेंट एज और अडल्ट ऐसे वो कैरी होता है। जब वो छोटा होता है तो डेफिनेटली ज्यादा पेरेंट्स उसको संभालते हैं, थोड़ा मारते भी है, थोड़ा सा डराते हैं, और किस तरीके से तो उसकी जो एज है वो मैनेज हो जाती है। बट बड़े होने के बाद और ज्यादा प्रॉब्लम डेवलप होता है। तो चिल्ड्रन के एज में एकेडमिक लिमिटेशंस, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, लो सेल्फ स्टीम, बड़े बड़े जो कुछ बच्चे इंजुरी कर लेते हैं, उनको समझ में नहीं आता है तो घर पे कुछ ऐसे गलत काम करते हैं, छुरी लेंगे, हाथ पर काट डालेंगे, कुछ भी ऐसे गलत तरीके से काम करने की वजह से उनको इंजुरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं।
देन एडोलेसेंट एज ग्रुप में स्मोकिंग, सब्सटेंस एब्यूज होने के चांसेस है, मोटर व्हीकल के एक्सीडेंट होने के चांसेस है, बिकॉज दे डोंट एनालाइज, दे डोंट अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स. तो गाड़ी सामने से आ रही है, वो कितना डिस्टेंस है, उसको कब रोकना चाहिए, कब ब्रेक मारना चाहिए, उतना अंडरस्टैंडिंग उनमें नहीं होता है. And because of that sometimes they come across the motor vehicle accidents also. Legal difficulties, किसी ने उनके साथ कुछ गलत बोल दिया तो वो सुन नहीं पाते, उसको समझ नहीं पाते और उसको मारना या उसके साथ कुछ गलत रिएक्शन देना, जिसकी वजह से लीगल डिफिकल्टीज भी हो सकती है बड़े होने के बाद. और एक्यूपेशनल और वोकेशनल, बड़े लोग भी जो अडल्ट एडीएचडी के लोग हैं वो भी उनका काम, उनके जॉब सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, बार बार उनको जॉब को चेंजेस करना पड़ता है. Conditions associated with ADHD, yes, there are multiple conditions: autism, mood disorder, anxiety, dyslexia. There are multiple. Sometimes ADHD alone is present, or sometimes it is associated with some or the other disorders. These are some differential diagnosis of ADHD. Medical treatment includes medication, behavioral therapy, psychotherapy, and some educational techniques for parents and teachers in the school. So what is the prognosis? It is best and better if diagnosed early and start the treatment early. अभी ये जो मेरा सेकंड केस था उसमें 3.5 years पे ही वो मदर को पता चला कि उसके बच्चे को ADHD है, and she come to me, she started occupational therapy and other therapies also. Because of that, the progress of that patient is much better. So जितना जल्दी हम लोग डायग्नोस करेंगे उतना जल्दी उसका इफेक्ट हमको दिखाई देगा. And along with that, supportive family and supportive environment should be there. Let's see the Ayurvedic view of the ADHD. बहुत बार हमको लगता है कि सच में इसको ADHD है या थोड़ा सा सिर्फ वात का एग्रीवेशन है ना. हम लोग प्रकृति डिसाइड करते हैं तो वात प्रकृति का है, ज्यादा बड़बड़ कर रहा है, प्रलाप हो रहा है, बहुत ज्यादा एक्टिविटी कर रहा है. इट मे बी द वाता predominance of that person, or it may be due to ADHD. So how we will understand? ADHD can be understood, और आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम लोग उसको कोरिलेशन करें तो ये मनोवह स्रोतस का व्याधि, स्पेसिफिकली वात और स्पेसिफिकली प्राणवात का दो व्याधि, त्रिदोष हैम्पर, त्रिदोषों का तो बोलते ना वाइटिएशन, तो उसमें हुआ ही है. गुण इम्बैलेंस, प्रीडोमिनेंट मानस रोग लीडिंग टू इम्पेयर्ड धी, धुति एंड स्मृति. धी धारणा शक्ति, धुति रिटेंशन पावर एंड स्मृति इज मेमोरी. हम कोई भी चीज को जब समझते हैं तो उसका रिलेशन लगाते हैं कि ये चीज को अगर मैंने उठाया तो मुझे लगने वाली है, इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, दैट वी अंडरस्टैंड. या छोटे बच्चे भी धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो एक चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं. जब छोटे बहुत 6 महीने के 1 साल के होते थे तो उनको पता नहीं चलता है कि दिया या कोई भी अगर हमने वहां पे आग है तो उसको टच करेंगे तो क्या होगा, दे डायरेक्टली गो एंड ट्राई टू होल्ड इट आउट. बट जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, एक बार अगर उनको चटका लग जाता है उस दिए का या उस चीज का, गर्म चीजों का, then they will understand, they will retention that, they have that capacity to retain the experience कि बाद में इसको हाथ लगाऊंगा तो मुझे गर्म लगेगा. बट ये इस ADHD वाले बच्चों में नहीं हो पाता है. they don't understand, they don't correlate in between. So what is the Ayurvedic निदान और causes? आहार विहार, परिवार जो फैमिली बैकग्राउंड है, जो हमने देखा कि गर्भज वाला जो पार्ट है, गर्भ संस्कार का इंपॉर्टेंस इसीलिए आता है कि प्रेगनेंसी के दरमियान माता का जैसा आहार, जैसा विहार, जैसे उसके थॉट, जैसे उसके विचार होते हैं, दे डायरेक्टली इम्पैक्टेड द बेबी. और इसी वजह से गर्भ अवस्था में सही तरीके का बोलते हैं ना आहार विहार आचार होना, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. और आजकल ये सब इसीलिए बढ़ गया है. अगर आप उसका प्रीवैलेंस देखो तो 20 इयर्स पहले इतने ADHD के पेशेंट या ऑटिज्म के पेशेंट नहीं होते थे. बट नाउ द इंसिडेंस और प्रीवैलेंस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी के दरमियान सिंगल बोलते ना न्यूक्लियर फैमिली, ऑफिस का टेंशन, जॉब का टेंशन, बहुत ज्यादा पैसे की वजह से होने वाली कचकच, उसकी वजह से प्रेगनेंसी के दरमियान, प्रेगनेंसी वाले जो पीरियड होता है उसमें द मदर्स आर नॉट हैप्पी. सो द मेन इंपॉर्टेंट और फोकस of गर्भ संस्कार is to keep the mother happy and positive throughout the pregnancy, so that अगर वो mother happy and positive रहती है तो definitely उसके आने वाले बच्चे के अंदर वो सब क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी डेवलप होने के लिए मदद मिलती है. बिकॉज जब मन की उत्पत्ति होती है, 5वें महीने में मन की उत्पत्ति होती है, 6वें महीने में बुद्धि की उत्पत्ति होती है, 7वें महीने में ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छी तरीके से होता है. तो ये सभी जो टाइम पीरियड होता है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी मदर, सो दैट उसका जो आने वाला बच्चा है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, हम अच्छी डेवलप करने के लिए मदद कर सकते हैं. एंड दैट इज द बोलते ना एक
पॉजिटिव पार्ट है आयुर्वेदा का, क्योंकि मॉडर्न में सिर्फ एडीएचडी होने के बाद वो लोग ट्रीट करते हैं, बट एज अ आयुर्वेदिक फिजिशियन और आयुर्वेदा चार्य वी हैव दैट कैपेसिटी कि हम ये सब बच्चे डेवलप ना हो, ऐसी कंडीशन डेवलप ही नहीं हो, इसके लिए कोशिश करना, दैट इज अवर मेन मोटो। अल्पसत्व ये प्रेगनेंसी में ही होता है, जो माता जैसा सोचती है वो अगर निगेटिव थॉट क्रिएट करेगी, निगेटिव सोचेगी कोई भी कंडीशन में, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर आएगा। एंड द लास्ट इज कर्मज, जैसे आयुर्वेद में बताया है। सो दोष एंड गुणों का इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से होता है इन एडीएचडी? प्राइमरीली एज आई सेड, वात दोषा इज द मेन चीफ रेगुलेशन ऑफ कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल। हमको सबको पता है एज आयुर्वेदा फिजिशियन कि पित्तम पंगु कफम पंगु पंगवो मलधातवा, वात जैसे होता है ना, वो सबको हिलाने का काम करता है, दैट इज द मेन पावर। तो जब जैसा वात कार्य करेगा वैसे सब बाकी के लोग कार्य करेंगे, तो दैट इज द मेन प्रिंसिपल, और हेड मास्टर आप उसको बोल सकते हो। तो जहां पे वात ही बिगड़ जाता है, डेफिनेटली बाकी के बॉडी के सभी फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट, वंस द रेगुलेटरी बॉडी इज डिस्टर्ब, ऑल अदर फंक्शंस आर गेटिंग डिस्टर्ब, सो कॉग्निशन बिहेवियरल चेंजेस डेवलप होते हैं। एसोसिएटेड दोषास, यस, एक बिगड़ता है उसके साथ बाकी के भी आ जाते हैं ना मिलने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए। सो लाइक दैट द कफ एंड पित्त, कफर डेवलप्स इनअटेंटिव फीचर्स एंड पित्त इज इमोशनल डिसरेगुलेशंस, या गुस्सा करना, चिड़चिड़ी करना, ये सब जब जो पित्त के गुण है वो दिखाना शुरू हो जाता है, दैट इज द सिम्टम्स ऑफ एडीएचडी। गुणों के बारे में अगर देखें, मानसिक गुण अगर हम लोग देखें तो रजोगुण की वृद्धि होती है, बिकॉज ऑफ दैट हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी डेवलप होती है। एंड जब तमोगुण की वृद्धि होती है, जैसे फर्स्ट हमारा जो केस था उसमें तमोगुण वृद्धि ज्यादा थी, बिकॉज ऑफ तामसिक आहार, जंक फूड, पैक फूड, नॉन वेजिटेरियन खाना, अंडे बहुत ज्यादा खाना, डेली वो दो दो तीन तीन अंडे खाता था, डेली उनके घर पे फिश या चिकन बनाया जाता था। बिकॉज ऑफ दैट तमोगुण की वृद्धि होना, एंड इट डेवलप्स इनटू इनअटेंशन एंड डलनेस। स्रोतस इन्वॉल्वमेंट, यस, मनोवर स्रोतस दृष्टि, बिकॉज स्रोतों का अगर हम लोग देखें, स्रोतों की दृष्टि में अति प्रवृत्ति, संग एंड विमार्ग गमन। अति प्रवृत्ति अगर होती है तो हाइपर एक्टिविटी, संग होगा मतलब वहां पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो इन अटेंशन होगा, एंड विमार्ग गमन इज इम्पल्सिव बिहेवियर। धातु एंड ओज का इन्वॉल्वमेंट, यस, बिकॉज ये जो एडीएचडी डिसऑर्डर है, इट इज नॉट ओनली रिलेटेड विथ मन, बट इट इज ऑल रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, all 7 धातुस are involved, and then oja is involved. So rasa and majja dhatu is specifically, but yes, rasa से रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, all धातुस are vitiated. And ओज दुष्टि, poor mental stability, immunity and resilience, ये सभी problems because of ओज दुष्टि we can find out in the kids of children of ADHD. मानस भाव दुष्टि, धी, इंटेलेक्चुअल पावर हमारी हैम्पर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से इम्पेयर्ड जजमेंट नहीं कर पाते हैं बच्चे, क्या करने से क्या होगा, किस तरीके का रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है कोई चीजों में, उसको अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी उनमें नहीं होती है। धुती नहीं होती है, जो समझने की, जो लैक ऑफ रिस्ट्रेन, उसको होल्ड करने की जो क्षमता है वो नहीं होती है। एंड स्मृति, पुअर रिटेंशन पावर, उसको रिकलेक्ट करने की जो पावर है वो भी उनमें नहीं होती है। क्लिनिकल आउटकम, उन्मादा, वी कैन कोरिलेट एडीएचडी विथ उन्माद, बट नॉट डायरेक्ट उन्माद, इट्स अ क्लासिकल उन्माद नहीं, बट फंक्शनल उन्माद। As it is a disorder, we can say it can be correlated with the unmada, but as a functional unmada, not with the क्लासिकल उन्मादा, जिसमें कन्वर्जेंस आते हैं, जिसमें आक्षेप होता है, वैसा उसमें नहीं होगा, बट येस द फंक्शनैलिटी इज डिस्टर्ब एंड बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव डिसफंक्शन रिसेंबलिंग टू एडीएचडी। शॉर्ट में संप्राप्ति देखेंगे, हमारा टाइम ऑफ होने को आया है, आई हैव ओनली 10 मिनट्स टू गो, बट येस आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस। सो संप्राप्ति, पैथोजेनेसिस, निदान, जैसे डाइट, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, गर्भकाल के फैक्टर, गर्भोपघातक भाव जिसको बोला है, सात्विक, रजस, तामस, ये जो पूरे जो 6 फैक्टर्स है गर्भ अवस्था में, उसमें अगर आत्मज भाव, रसज भाव, मातृज भाव, पितृज भाव, कहीं पे भी अगर कुछ भी गलत इंटेंशन, गलत हेतु, गलत धारणाएं मन में है, तो उसका भी इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर हो सकता है। सो ये सभी फैक्टर्स निदान के, उसकी वजह से वात एंड कफ की दृष्टि, प्राण वायु की दृष्टि, रजोगुण तमोगुण की दृष्टि, मनोवर स्रोतस का इम्पैक्ट, बिकॉज ये रजो और तमोगुण रहते कहाँ पे है, मनोवर स्रोतस में। ओज दृष्टि, रसमज्जा धातु दृष्टि एंड धी धृति स्मृति का विभ्रंश हो जाता है, दे आर नॉट एबल टू वर्क इन अ प्रॉपर वे बिकॉज ऑफ दिस केमिकल लोचा।
and that develops to chanchalata, avsad, avdharana, abhava of understanding, inattention and hyperactivity, and develops to the ADHD. सो संप्राप्ति दोनों में हाइपर एक्टिव और इन अटेंटिव में अगर देखें तो हाइपर एक्टिव इज मोर रिलेटेड टू वात एंड रजोगुण, and inattentive type is more related with kapha and tamoguna. And because of that kapha and tamoguna आवरण on प्राणवात मनोवर स्रोतस मंदता, जो बुद्धि का जो एक्टिविटी है वो स्लो डाउन हो जाता है, और यहाँ पे रजोगुण की वजह से अति प्रवृत्ति होती है, जिसकी वजह से चंचलता एंड अशांति, हाइपर एक्टिव, इम्पल्सिविटी ये डेवलप हो जाती है. सो दोनों में ट्रीटमेंट में हम लोग तो थोड़ा सा चेंज करना आवश्यक है. दोनों, ऑल एडीएचडी हैज नो इक्वल और नो सिमिलर ट्रीटमेंट. सो अगर इनअटेंटिव एडीएचडी है, देन वी हैव टू गो विद द कफ एंड तमोगुण की वृद्धि हुई है तो उसको कम करने वाली चिकित्सा हमको करनी है. बिकॉज ये सभी कफ एंड तमोगुण व्हेन इन हाई लेवल, लैक ऑफ अटेंशन, पुअर मोटिवेशन, स्लो कॉग्निटिव पावर, डे ड्रीमिंग, लिथार्जी, ये सब आलस्य, ये सभी सिम्टम्स हमको दिखाई देते हैं. सो इसके जो आवरण आया है, कफ का जो आवरण आया है बुद्धि के ऊपर, उसको निकालना, दैट इज द मेन मोटो ऑफ अवर ट्रीटमेंट. एंड हाइपर एक्टिव एडीएचडी की चिकित्सा करने के टाइम पे हमको वात और रजोगुण की वृद्धि दिखाई देती है, और इसके लिए हमको उसी के ऊपर ध्यान देना है. एंड स्पेसिफिकली जो वात का चल गुण है वो ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है. बिकॉज अगर आपने वात के तत्व, वृक्ष, लघु, शीत, श्लेष्ण, सूक्ष्म, खलव, अनिलहा, अगर आप ये उसके गुण देखो तो उसमें से भी स्पेसिफिकली चल गुण, बिकॉज एक्टिव बहुत ज्यादा होता है, हाइपर एक्टिव होते हैं बच्चे, उनके हर एक, नॉट ओनली फिजिकल लेवल पे चल गुण, बट मेंटल लेवल पे भी, मानसिक लेवल पे भी जो चल गुण है, मन का जो चंचलता है वो डेवलप ज्यादा हाइपर एक्टिव उसमें दिखाई देती है. चल गुण बढ़ने की वजह से ये होता है. और प्राणवात की दृष्टि होने की वजह से ही वॉज नॉट एबल टू understand the correlation, his cognitive power, his attention power, all are disturbed. So pran, vat, prakop and rajo guna dominance in hyperactive syndrome. So we can correlate Ayurvedic approach with ADHD as attention धी के साथ, impulsive control धुति के साथ, memory स्मृति के साथ, and cognitive dysfunction with प्राण and वाता दृष्टि, and behavioral imbalance with raja and तमो वृद्धि. अगर हम एक एक सिम्टम्स को इसके साथ कोरिलेट करें और उसके अकॉर्डिंगली अगर चिकित्सा या ट्रीटमेंट करते हैं, सो दैट विल बी इजी टू डू द ट्रीटमेंट ऑफ ADHD. So main, what is the core principle while doing the treatment of ADHD? वात शमन, because the main culprit is वात, है ना. अगर वात को हमने बैलेंस कर दिया तो जो मेन पावर है ना घर के, अगर आपने एक जो पावरफुल पर्सन है उसको ही जीत लिया तो बाकी के सब लोग तो अपने आप से जीते जाएंगे. यस, तो वैसे वात इज द मेन कल्प्रिट. तो वात का शमन करना, उसको बैलेंस करना, उसमें जो भी इम्बैलेंस है, वात वृद्धि हुई है या वात का क्षय हुआ है, दोनों हो सकता है, तो उसको हमको साम्य स्थिति में लाना, दैट इज द मेन मोटो ऑफ अवर ट्रीटमेंट. कफ आवरण को रिमूव करना, बिकॉज कफ जो है वो आवरण करता है जहां जहां पे, वहां पे प्रॉब्लम डेवलप होता है. तो उसने अगर बुद्धि के ऊपर आवरण किया है तो इन अटेंटिव टाइप ऑफ एडीएचडी डेवलप हो सकता है. रजा एंड तमो गुण को बैलेंस करना, सत्व गुण को बढ़ाना, दैट इज द मेन पर्पज ऑफ अवर ट्रीटमेंट. प्लान और वात का बैलेंसिंग करना, ओजो का एनहांसमेंट करना, और ओज की वृद्धि या ओज का एनहांसमेंट तभी होता है जब रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र सभी धातु का पोषण सही तरीके से होता है. डायरेक्ट ओज की वृद्धि हम लोग नहीं कर सकते, इट्स इम्पॉसिबल. सो वी हैव टू गो विद द बेसिक प्रिंसिपल्स. तो रस धातु अच्छा हो, रस धातु से रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र. मेध्य रसायन, यस, डायरेक्ट प्रभाव से हम लोग कुछ चिकित्सा करते हैं, प्रभावी औषधि जिसमें मेध्य रसायन का उपयोग होता है, एंड सत्वावजय चिकित्सा. एंड द मेन ट्रीटमेंट हम लोग को कहाँ पे करना है, सो मेन प्रोटोकॉल व्हाइल डूइंग ट्रीटमेंट इज आहार, विहार एंड औषधि के ऊपर. सो आहार वी ऑल नो, हमको उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बट नॉर्मल कफ एंड वात को बैलेंस करने वाला डाइट, जंक फूड, बाहर के पैक फूड, स्टिमुलेंट्स, एक्सेसिव शुगर, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सभी चीजों को हमको अवॉइड करना है. जितना हो सके फ्रेशली प्रिपेयर्ड वेजिटेरियन फूड, होममेड फूड, उसी को हमको प्रेफर करना है. दिनचर्या, ऋतुचर्या का पालन करना, आचार रसायन का पालन करना, स्क्रीन टाइम जो आपको बहुत ज्यादा इनअटेंटिव करता है, आपका जो माइंड है उसको डिस्टर्ब करता है, उसको आपको रिस्ट्रिक्ट करना जरूरी है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली योगा एंड मेडिटेशन टू डेवलप
मानस विकार, मतलब मन की जो बोलते हैं ना, मन की पावर को बढ़ाने के लिए, मेंटल पावर को बढ़ाने के लिए योग एंड मेडिटेशन इज वेरी हेल्पफुल इन दिस टाइप ऑफ पेशेंट्स. औषधि चिकित्सा, यस, वातशामक चिकित्सा में हम लोग वात के लिए तेल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चिकित्सा. सो शिरबला तेल, नारायण तेल, अश्वगंधा ऑयल इज यूज. कफ शामक में वचा, पिपली, त्रिफला, हिंगवाष्टक चूर्ण, भास्कर लवण चूर्ण, ऐसे अलग अलग मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं. रज एंड तम के शमन के लिए ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामंसी, ये जो मनोविकार के ऊपर, जो मानस और बुद्धि के ऊपर काम करने वाली सब दवाइयां है, जो ऑल दी ड्रग्स आर यूज फॉर द रज एंड तम शमन. प्राण एंड वात बैलेंसिंग ड्रग्स लाइक अश्वगंधा, सुंठी. और नस्य ट्रीटमेंट, नस्य इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट. जब से मैंने गाला सरका और हिमा से गुड़ शुंठी नस्य सीखा है, एंड उसके बाद से मैंने ज्यादातर सभी पेशेंट में बाकी के भी नस्य, गुड़ शुंठी नस्य और बाकी के नस्य का ज्यादा उपयोग करना चालू किया. बट येस, इन दिस सच टाइप ऑफ पेशेंट, एडीएचडी पेशेंट में भी नस्य का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल. बिकॉज द मेन कल्प्रिट, जो मेन डिसीज की जो जगह है, जो एरिया है, दैट इज हेड और ब्रेन, एंड नस्य इज द क्लोजेस्ट वे टू रीच देयर. मेध्य रसायन, मंडूकपर्णी, गुडुची, यष्टि, ज्योतिषमती, these are all the मेध्य रसायन drugs, we can use it. And ओजोवर्धक द्रव्य like सुवर्णकल्प, च्यवनप्राश, these are the रसायन औषधि. रसायन जो करता है, रसायन, कोई भी रसायन औषध जो होता है वो सभी धातुओं का पोषण करके फिर ओजो की वृद्धि करता है, फिर ओज धातु का पोषण करता है. So such type of रसायन द्रव्य we can use. पंचकर्म पर्सपेक्टिव्स, यस, स्नेहपान इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द, बोलते ना, वात को कम करने के लिए, वात का शमन करने के लिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट. अभ्यंग, सहचर, दशमूल, धानवंतरम तेल, इस तरीके के सच टाइप ऑफ ऑयल्स कैन बी यूज फॉर द अभ्यंग. शिरोधारा विद ब्राह्मी और बला अश्वगंधा दी ऑयल. शिरो अभ्यंग विद ब्राह्मी ऑयल. नस्य विद ब्राह्मी घृत एंड पंचगव्य घृत. मात्रा बस्ती विद सहचर ऑयल, नारायण ऑयल, कल्याण घृत. Many drugs we can use in permutation and combination according to the symptoms of our patients. मात्रा बस्ती मेरे सभी पेशेंट में, आज तक जितने भी मैंने एडीएचडी के पेशेंट देखे, डीवाई पाटिल में देखे और यहाँ पे मेरे क्लिनिक में भी, मैक्स टू मैक्स आई गिव मात्रा बस्ती. बिकॉज विनय वेलेंकर सर का मैंने एक लेक्चर सुना था. इन दैट लेक्चर सर टोल्ड अस कि मात्रा बस्ती और द बस्ती वी कैन गिव इट एज अ डेली बेसिस. और दाता शास्त्री का भी एक ये था, बस्ती द्यावा बस्ती घ्यावा, बस्ती जीवाचा विसावा. मतलब बस्ती इज अर्ध चिकित्सा इन आयुर्वेदा. सो जो भी पेशेंट में हमको ज्यादा कुछ नहीं समझ में आता है ना, बस्ती में दे देती हूँ. तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट. एंड एडीएसडी में तो वात इम्बैलेंस है, वात इज द मेन कल्प्रिट है. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इज ऑफ मात्रा बस्ती. So Basti is considered as ardha chikitsa for all the disorders. It works with the gut-brain axis. आप सभी को पता है. Balancing वात, enhance cognition power, reduce anxiety and depression. बस्ती के लिए कौन कौन से ऑयल यूज कर सकते हैं? सो सर्चर ऑयल, क्षीरबला ऑयल, महानारायण ऑयल, ब्राह्मी ऑयल, अश्वगंधा ऑयल, महाकल्याण घृत एंड कल्याण घृत की भी बस्ती मैंने पेशेंट को दी है. सत्वावजय चिकित्सा एंड बिहेवियरल चिकित्सा ट्रीटमेंट, यस, दैट इज इंपॉर्टेंट. बिकॉज ये जो डिसऑर्डर है, इसको हम पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकते हैं, इसको हमको कंट्रोल करना है. वी आर नॉट एबल टू क्योर दिस डिसऑर्डर्स, बट वी हैव टू लिव विद दिस डिसऑर्डर्स. सो वी हैव टू टीच द पेरेंट्स, टीचर्स एंड द पेशेंट हाउ टू लिव विद दिस एडीएचडी. सो सत्वावजय चिकित्सा, बिहेवियरल थेरेपी, रूटीन उनका एक स्ट्रक्चर प्लान करके देना, पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट उनमें करना, स्क्रीन एक्सपोजर को कम से कम यूज करना, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, मंत्र, कुछ पावरफुल माइंड प्रैक्टिसेस, माइंडफुल प्रैक्टिसेस जो होती है हमारे एमिगडाला को कंट्रोल करने के लिए, एंड फैमिली एंड टीचर्स का ट्रेनिंग, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इज फॉर अवर साइड, अगर हम लोग देखें तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट. बिकॉज अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर से विकार प्रशमनम बाद में आता है. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ अस इज स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम. तो जो स्वस्थ व्यक्ति है, आगे उनके बच्चों में एडीएचडी ना हो, दे डोंट हैव दैट प्रॉब्लम, तो उसके लिए हमको पहले से उसके ऊपर काम करना है. एंड दैट इज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ गर्भ संस्कार. सो बैलेंस सत्व डेवलपमेंट, प्राण वात रेगुलेशन इन गर्भकाल, गर्भ की अवस्था में ही अगर हम बच्चे की फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल लेवल को, आईक्यू को अच्छा कर सकते हैं, पीक्यू, ईक्यू, ईएसक्यू एंड आईक्यू, ये चारों जो क्यूज है ना, इसका टू डेवलप दिस 4 cues in pregnancy, that is the role of गर्भ संस्कार.
So that is most important thing. Reduction in neurobehavioral disorders and holistic brain development. ये सभी चीजों का इम्पैक्ट अगर गर्भ संस्कार के माध्यम से हम मदर के ऊपर करते हैं, so definitely we can prevent future ADHD types to develop. एक लास्ट स्लाइड कि आपने सबको ये दो कौन है आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है. यस, आपने सभी ने दोनों लोगों को पहचाना होगा. यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग हु दे आर. So first is Alia Bhatt and Bill Gates. They both have ADHD. बट कभी किसी को पता नहीं चला. उन्होंने तो डिक्लेयर भी किया है आलिया भट्ट ने उनके एक इंटरव्यू में. बट वी कैन मैनेज इट. सो ADHD डज नॉट डिसाइड योर डेस्टिनी कि भाई ADHD बच्चे को है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में. नो, नॉट लाइक दैट. वी शुड इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ दैट मदर कि डोंट वरी, आपके बच्चे को ADHD कोई प्रॉब्लम नहीं. ही कैन बी लीव अ नॉर्मल लाइफ. there is no problem as such, but उसके लिए आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत लेनी पड़ेगी. नॉर्मल बच्चे के लिए ज्यादा मेहनत नहीं लेनी पड़ेगी. इजी टू हैंडल देम. बट यस, अगर आपके बच्चे को ADHD है, यू हैव टू वर्क मोर. आपको थोड़ा प्रॉपर पैथवे, प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है. सो ADHD डज नॉट डिसाइड द डेस्टिनी, बट राइट गाइडेंस. हमको उसको राइट गाइडेंस देना है, एंड वी आर हियर टू प्रोवाइड इट एज आयुर्वेदिक फिजिशियंस. दैट इज अवर मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी. सो आयुर्वेदा उसको सप्रेस नहीं करता है, उसको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मदद करता है आयुर्वेदा. क्योंकि ADHD के जो बच्चे होते हैं, दे आर मोस्टली इंटेलिजेंट. दे हैव दैट इमोशनल थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस होते हैं, बट वो मतिमंद नहीं होते हैं. दे आर नॉट मेंटली रिटायर्ड. बट उनका जो बैलेंसिंग है कहीं पे बिगड़ा हुआ है. अगर हमने उनको सही डायरेक्शन दिया, सही तरीके से गाइड किया उनको, उनके टीचर को, उनकी फैमिली को, सो डेफिनेटली दे कैन बी डेवलप. हमसे भी ज्यादा कुछ अच्छा कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली दे कैन लिव अ नॉर्मल ब्यूटीफुल लाइफ थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन. So that is the message for today's session. So thank you so much. God bless you all, and I hope कि we all can treat ADHD. क्योंकि जब हम लोग करेंगे तो पता चलेगा, जब तक नहीं करेंगे कोई भी पेशेंट तो हमको पता नहीं चलता है. एंड वंस वी स्टार्ट डूइंग इट, वी विल अंडरस्टैंड सिंपल सिंगल कंसेप्ट, एंड वी विल अनफोल्ड अवर नॉलेज. और आयुर्वेदा का जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमको समझ में आता है. सो थैंक यू सो मच अगेन आनंद सर, हिमा, स्नेहिल सर, फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. जो कुछ भी यहाँ पे अच्छा मैंने कुछ दिया होगा, उसमें से एक पॉइंट भी अगर आपको अच्छा लगा हो, सो दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ माय गुरुज, माय टीचर्स. एंड अगर उसमें कुछ गलती हुई हो, सो दैट इज द माय फॉल्ट. सो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट. सो थैंक यू सो मच, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. Thank you so much, Dr. Pallavi, for that Sharing. insightful and enriching presentation. Yes, if somebody has any question, they can ask in the chat box, or they can ask directly. Yes, ma'am. Ma'am, your expertise and knowledge have helped us with a deeper understanding of this topic. On you would like to the session for any questions. Please feel free to raise your I'm not hand able to stop the or screen type your share. question in the chat box, and Dr. Pallavi will address them. Ma'am, you can just click Anand sir, on I'm not able to share, share. and you can Stop my close the screen sharing sharing. there. Okay. Ma'am, you can just click on Okay, the yes, I Teams. got it. I got it. Yes, ma'am. Go back to Teams. Okay, okay. Yeah, sure, ma'am. So yeah, so that we'll be before we conclude, we'll be opening the session for any questions. Please feel free to raise your hands or type your question in the chat box, and Dr. Pallavi will address them. The Q&A shall be hosted and managed by Dr. Snehal Makwana. Good evening, everybody. Very nice and informative lecture, ma'am. My voice is clear? Is it audible? Yes. You have explained Yes, Dr. very well, Snehal. ma'am, Yes, about we can hear you. Garbha Sanskar. But one point I want to add and share is that Garbha Sanskar does not start at the conception, but what we do is Garbha Sanskar starts pre-conception. The point where couple thinks that they are planning to have a baby,
That is the point we should start with the Garbha Sanskar, and that is the intervention we need to start with. So that is the main preparation of Garbha Sanskar. Once the baby is formed, once the union of sperm and ovum is done, Jeev has entered, so the soul is tagged already. And all the karmas, all the things which that soul has brought is already there. So before that tagging happens of Jiva to that parents, that is the point we need to start with the Garbha Sanskar. So for all the Ayurvedic doctors who do Garbha Sanskar or who are attending this lecture, this will be a point to take that Garbha Sanskar has to be before pregnancy, before planning, not after Actually, from conception. starting the selection of partner. Yes. So that is the thing, and that's where the thing starts. And as you correctly said, that ADHD very well starts in the pregnancy, so we need to correct that. And the things we correct during the pregnancy, obviously it percolates throughout the life. So let's move on to the question answer session. uh, One of the Dr. Anju has said that music therapy also works well on these kids. Yes, You yes, ma'am. do you have Yes. anything about Yes, it? while doing yoga and meditation, I asked them to chant some stotras like गणपति अथर्व शीर्ष स्तोत्र और कृष्ण का कोई मंत्र अगर उनको आता है तो वो जो जो उनके घर पे ज्यादा चलता है, जो जिसके ऊपर उनको ज्यादा बिलीफ है, वैसे कोई भी स्तोत्र या मंत्र उनको रेगुलरली बोलने के लिए घर पे शुभम करोति कल्याणम या जो नॉर्मली हम घर पे रेगुलरली जो चांट करते हैं, वैसे मैं उनको एडवाइस करती हूँ कि रेगुलरली आप उसको एक स्ट्रक्चर करने के लिए बोला जाता है, एक रूटीन। जब वो रूटीन सिस्टमेटिक वे पे डेवलप होता है कि सुबह उठ के आपको ब्रश करना है, फिर कराग्रे वसते लक्ष्मी, दिस मतलब ये मंत्र के ऊपर एक घंटे का लेक्चर लगेगा कि उसके ऊपर हम लोग इतना उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं कि किस तरीके से हमको उसको फॉलो करना है। बट ये म्यूजिक थेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट। Okay, next question is from same Dr. Anju that have you tried Panchendriya Vardhan oil as a nasya in these cases? नहीं, Your पंचेंद्रिय opinion on वर्धन this? का मैंने स्टार्टिंग में यूज करती हूँ सिर्फ, फिर फर्स्ट शोधन के लिए, फिर बाद में ब्रूहण के लिए ब्राह्मी घृत नस्य। स्टार्टिंग में पंचेंद्रिय वर्धन या फिर पंचगव्य घृत, दोनों में से कुछ एक में क्लियर थोड़े दिन तक करती हूँ पेशेंट को, देन स्टार्ट विद ब्राह्मी घृत। Okay, and one of the queries, if पंचेंद्रिय the वर्धन patient बहुत is ज्यादा इरिटेट करता है बहुत बार बच्चों को। right. Okay. One of the queries, if the ADHD patients are not able to consume Ghritam or Nasya, Abhyanga, ये सारी चीजों के लिए they are not like resist करते हैं, so how to go about it? ये तो अभी आपका उनके पेरेंट्स का बोलते ना, उसकी एग्जाम है, आपकी एग्जाम है, बच्चों की नहीं है, आपकी एग्जाम है। सो यू हैव टू आस्क द मदर टू ऐड दैट घी इनटू द पराठास और सम जो कुकिंग फूड उनके लिए करते हैं, उसमें विचारना स्नेह से भी हम लोग दिलवाते हैं, अगर वो बच्चे डायरेक्टली नहीं ले पाते हैं तो। या फिर अगर उनको कुछ मिल्क हम लोग देते हैं या कुछ दवाई देते हैं तो उसके साथ मिला के भी दिया जाता है। और नॉर्मली कल्याण ग्रोथ इज नॉट हैविंग बिटर टेस्ट, इट्स नॉर्मल टेस्ट। और उस कंडीशन में नॉर्मल सिंपल देसी घी जो गो घृत है वो भी अच्छा रोल प्ले करता है। तो जो मेडिसिनल घी है वो भी देना है, वो तो आपको नॉर्मली 1 चम्मच या 2 चम्मच ही देना है एज के हिसाब से। बट ओवरऑल द जो उनका खाना है उसमें सात्विक फूड हमने बोला है, सात्विक फूड में घी का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। तो जो भी रोटी, खीर, पराठा जो भी उनके लिए बनाया जाता है, आस्क देम टू ऐड सम घी इन दैट, और मेडिकेटेड घी आल्सो। Right. Okay. One of the suggestion from Dr. Anju is Shiro Pichu also works on the kids in place of Shirodhara, and it is very economical also. Yes, आई डू आज द पेशेंट टू डू शिरो पिचू ओनली। मैं बस्ती भी उनको घर पे ही देती हूँ क्योंकि दिस ट्रीटमेंट्स आर फॉर लॉन्ग टर्म and patient are not able to afford it for the in our clinic. If I ask them patient to come to Shirodhara for 7 or 8 days and every month, so it is impossible for them to afford that cost. So it is better to give Shiro Pichu and Matra Basti also. I teach them to do it at home. Mothers अच्छे से कर दे है वो बच्चे के लिए, so that is easy। 20 ml मात्रा बस्ती वो दे सकते हैं घर पे, दैट इज नॉट एन इश्यू।
So आपने already you have answered next question, that is have you tried training ADHD patient to take Basti at home? So आपने वो बता Yes. ही दिया कि yes you train. Okay. पेरेंट्स को One ट्रेन करना practical है, फिर question. पेरेंट्स को ट्रेन कर दिया ना तो पेरेंट्स बराबर से अपने बच्चे को, हर एक मदर होती है ना, उसको पता है कि मुझे मेरे बच्चे को किस तरीके से हैंडल करना है। भले कुछ लालच देके, भले कुछ धमकी देके बोलो, कुछ भी तरीके से बोलो, बट वो बच्चे को मैनेज कर लेती है कि भाई मुझे ये तुम्हारे लिए करना है, नस से करोगे तो मैं तुमको ये खिला दूंगी, चलो फिर वो कर लेता है बच्चा। सो दैट इज ऑल द, बोलते ना वो मदर की काबिलियत है, वो किस तरीके से उसको हैंडल करती है। सो मदर को ट्रेनिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको इसका इंपॉर्टेंस बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसको एक बार उसका इंपॉर्टेंस पता चल गया और फर्स्ट मंथ में जब वो मदर करती है, एंड व्हेन शी फाइंड आउट द डिफरेंस डिफरेंस इन देयर किड्स, दे विल डेफिनेटली गो फॉर इट। आगे जाके वो खुद से करते हैं मदर्स, हमको कुछ Yes. फोर्स नहीं करना पड़ता है। वन ऑफ द प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्योंकि सारे जो भी ये डायग्नोस्ड केसेस होते हैं दे कम फ्रॉम द पीडियाट्रिक बैकग्राउंड, पीडियाट्रिक डॉक्टर्स के पास, एंड द स्पेशलिस्ट वुड आस्क टू अवॉइड शुगर, जैगरी, एंड जब हम रसायन वगैरह देते हैं, कुछ ऐसी चीजें देते हैं जिसमें खड़ी शक्कर है या घी है, च्यवनप्राश जैसी चीजें, सो दे स्पेसिफिकली आस्क नॉट टू टेक इट। सो उसमें काउंसिल कैसे करे पेशेंट पेरेंट्स? वो तो हर जगह पे होता है, सर्दी खांसी भी होता है ना, तो हम लोगों को वैसा ही क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर ने तो बोला केला खाओ, दही खाओ, कुछ नहीं होता है, बट वी हैव टू से कि नहीं, आयुर्वेदा में ये नहीं चलता है। सो दैट इज द थिंग, जो आयुर्वेद पे बिलीव करता है वो हमारी बात मानेगा, दैट इज द मेन थिंग। तो उसको आपको समझाना है कि ये सब जो घी है या जो भी हम लोग जैगरी दे रहे हैं, समझो च्यवनप्राश में थोड़ी बहुत शुगर है, दैट इज मिनिमल ना। आप बाकी के चॉकलेट दे रहे हो या बाकी की चीजें दे रहे हो, वो बंद करो, और दिस मिनिमल शुगर इज ओके फॉर दैट, so that is not an issue. One thing what I would like to add here, not about this, but ADHD specifically, or the patient जो kids specifically children जो ये labels लेके आते हैं, intellectual disability, ADHD है, और बहुत सारे other diagnosis we see right now. What we suggest on the first day of counseling is parents को हम ये बताते हैं कि it's okay कि आपके बच्चे को लेबल किसी ने लगाया ADHD का, बट आप आपके दिमाग से वो लेबल निकाल दो ADHD का, कि बच्चा ADHD है, क्योंकि वो लेबल के अंदर ना बहुत सारी चीजें आ जाती है और बच्चा उस ब्रैकेट में फिक्स हो जाता है। एंड देन पेरेंट्स ऑल्सो लर्न टू सी दैट चिल्ड्रन और चाइल्ड एज कि वो वही कैटेगरी में आता है, कुछ अलग हो ही नहीं सकता है इसके अलावा। सो वो टैग निकाल का पेरेंट्स के दिमाग से इज वेरी मच फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। तो जैसे आपने अभी लास्ट स्लाइड में बताया बिल गेट्स का या आलिया भट्ट का, they have achieved so much in life because वो टैग नहीं लगा है। अब तो हमको पता चल रहा है जब उन्होंने बोला कि अच्छा ADHD, वरना तो हमें पता ही नहीं था ऐसी चीजें। तो टैग के साथ ना फिर बहुत सारी चीजें आ जाती है, तो पेरेंट्स के माइंड में से वो टैग निकालना, जो भी डायग्नोसिस है उसका, कि इसको बाजू में रख देते हैं अभी के लिए, है ठीक है, इसको बाजू में रखते हैं और फिर हम देखते हैं, तो इट बिकम्स वेरी इजियर टू फॉर पेरेंट्स टू एक्सेप्ट द चाइल्ड, एंड उसके साथ उसको Yes. जो भी इम्प्रूवमेंट आती है ना वो देखने लग जाते हैं फिर पेरेंट्स। करेक्ट। मैं तो पेरेंट्स को बोलती हूँ कि पेशेंट जब आता है ना मेरे पास, मैं पेशेंट को बाहर बिठाती हूँ, बिकॉज मैक्सिमम टाइम क्या होता है, मदर आती है और हमारे सामने उसकी कंप्लेंट करते रहती है, बच्चे के सामने, मैडम ये सुनता नहीं है, मैडम ये करता नहीं है, वो करता नहीं है। सो द बच्चे को लगता है कि मैं ऐसा ही हूँ। सो मैं नॉर्मली बच्चे को बाहर कुछ ड्राइंग करने के लिए या खिलौना देती हूँ, या मेरी कंपाउंडर को बोलती हूँ कि उसके साथ कुछ बातें कर, और देन पेशेंट की मदर से सब हिस्ट्री लेती हूँ। बिकॉज अगर पेशेंट के सामने, वो बच्चे के सामने, भले वो 5-6 साल का है, बट ही अंडरस्टैंड एवरीथिंग कि उसके बारे में क्या बोला जा रहा है। तो उसको कभी भी, मैं मेरे क्लिनिक में, मेरे कंसल्टिंग में बच्चा कभी बैठता नहीं है, पहले पहले मदर बैठती है, उसके उसको सब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, उसकी हिस्ट्री पूछती हूँ, एंड लास्ट में आई आस्क द चाइल्ड टू कम इन, सो दैट मैं उसके साथ थोड़ा गप्पे मारूं, उसके साथ थोड़ा एंटरटेनमेंट करूं, कुछ मस्ती करूं, सो दैट ही विल फील। और ये जो सेकंड मेरा बेबी था, पेशेंट था, चाइल्ड था, उसकी मदर को तो मैंने स्ट्रिक्टली बोला था, ये ऐसा नहीं करना है, उसको नहीं बताना है, क्या करना है वो बताना है। बिकॉज उसकी वो आदत थी हमेशा, शी स्टार्ट विद द नेगेटिव सेंटेंसेस, ये मत कर, यहाँ पे मत बैठ, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। आई आस्क हर टू गिव एडवाइस इन अ पॉजिटिव वे, कि ये करना है, ये करो, वो करो, ये नहीं करना, ये मत बोलो उसको, सो दैट दैट नेगेटिव इम्पैक्ट उसके माइंड में ना जाए। सो ये पहले मैंने मदर को काउंसिलिंग करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फिर बच्चा तो डेफिनेटली वो अच्छा हो ही सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। Okay, great.
Okay. Anand, I don't see any questions in the chat box and no hand raise also. You can take over from now and we can end the session. Yeah, sure. Mm. Yeah, thank you, Dr. Snail, and thank you, Dr. Pallavi again. So, thanks a lot to all the participants and especially Dr. Pallavi again for the amazing session today. Thank you all for the active participation and engaging questions. We hope you found this session very valuable and informative. Once again, a big thanks to Dr. Pallavi Perud for sharing her expertise with us today. Again to all the participants for joining us. We look forward to seeing you all in our next Gyanvardhini session, which is scheduled on 28th of January 2026. We shall soon be sharing the presenter and the topic details in a spam-free Gyanvardhini WhatsApp community group. Wishing you all a very happy new year in advance. So we'll be closing the session now here. And thanks again and closing here. Thank you. Thank you so Good much night. for giving me the opportunity to share my thoughts. Thank you so much, Anand. Thank you so much, CleanServe. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.